اور آج 23 اپریل تھرسڈے، چاند کی 29 تاریخ تھی لیکن چاند نظر نہیں آیا۔ کل 24 اپریل فرائیڈے شکروار ہے اور کل ہی چاند کی مکمل 30 تاریخ ہو جانی ہے، لہٰذا کہنا اس بات کو غلط نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ یہ آج کہہ رہے تھے کہ بنگلور میں چاند نظر آ گیا یا دلی کے آس پاس کے NCR کے علاقوں میں لوگ واٹس ایپ سے ٹویٹر سے خبر ایک دوسرے کو بھیج رہے تھے، کہیں چاند نظر نہیں آیا ہے۔ چاند کل دکھائی دے گا اور پرسوں سے سیٹرڈے کو پہلا روزہ ہوگا۔ جامع مسجد کے شاہی امام سید احمد بخاری کیا خطاب کر رہے ہیں اپنا، آپ تمام لوگوں کے لیے انہوں نے ایک میسج دیا ہے، آپ لوگ سنیے اور کس طرح سے آپ کو کیا کچھ کرنا ہے کیا نہیں کرنا، جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ کورونا کی وجہ سے تراویح کا کیا اہتمام کریں، کس طریقے سے آپ کو روزہ رکھنا ہے، کس طرح سحری کرنا ہے، اس کے حساب سے جو امام صاحب کہہ رہے ہیں سنیے۔ کرونا وائرس ہندوستان سمیت پوری دنیا میں مسلسل پھیلتا جا رہا ہے۔ اب یہ ہم پر اور آپ پر ہے کہ اس وائرس کو ختم کرنے کی جنگ میں ہم کتنا ساتھ دیتے ہیں۔ حکومت ہند کی طرف سے کرونا وائرس کے حوالے سے جو ہدایت مسلسل آ رہی ہیں، اگر ہم اس پر پوری طرح عمل کریں تو اس وائرس کو جلد ختم کرنے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ 2 دن کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے اور رمضان مبارک کے تعلق سے علماء کی شرعی رائے ملک کے سامنے آ چکی ہے کہ 5 وقتہ نمازیں اور تراویح گھروں میں ہی پڑھنی ہے اور سوشل ڈسٹینسنگ بنائے رکھنا نہایت ضروری ہے۔ ایک دوسرے سے دوری اور دیگر ہدایت پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو، اپنے خاندان اور سماج کو اس مہلک بیماری سے بچا سکتے ہیں۔ فتح پوری مسجد کے شاہی امام ڈاکٹر مفتی مکرم کیا بیان کر رہے ہیں رمضان کو لے کر کے، سحری اور تراویح کو لے کر کے، افطار کو لے کر؟ سنیے ایک بار ڈاکٹر مفتی مکرم کو، کیونکہ کورونا کرفیو چل رہا ہے، وائرس پھیلا ہوا ہے بہت زیادہ، مسجدوں میں نہ جمع ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ مسجدیں ویسے بھی بند ہی ہیں، جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے تب سے پوری طریقے سے جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں بند ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر مفتی مکرم، سنیے ذرا۔ آج کل کورونا وائرس بیماری بہت خطرناک روپ اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اس میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ڈاکٹر مشورہ دے رہے ہیں، جو ایڈوائزری جاری کی جا رہی ہے، اس پر ہم عمل کریں اور روزے رکھ کر گھر میں ہی تلاوت کریں، عبادت کریں اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، نہ سحری کے وقت نکلیں، نہ افطار کے وقت نکلیں، تراویح کے وقت بھی مسجد میں نہ جانے کی کوشش کریں بلکہ گھر میں ہی نماز پڑھیں۔ تراویح اگر آپ گھر میں پڑھیں گے، اگر جماعت سے پڑھیں تو بھی سوشل ڈسٹینس کا دھیان رکھیں اور پڑوس کے لوگوں کو یا دوسرے لوگوں کو گھر میں نہ بلائیں۔ اور اگر تراویح اکیلے پڑھیں گے تو بھی کوئی اس میں گناہ نہیں ہے، بلکہ اس میں شریعت کی اجازت ہے، اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور گھر کے لوگ جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس بیماری سے جتنی جلدی ہم چھٹکارا پا لیں گے اتنا اچھا ہے۔ اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ دہلی کے اندر بھی اور بھارت میں کئی جگہوں پر یہ بہت خطرناک طور سے بڑھتی جا رہی ہے، اس میں برابر اضافہ ہو رہا ہے، لہذا اس میں بالکل لاپرواہی نہ کریں اور گھر کے اندر رہنے کی کوشش کریں اور اللہ سے عبادت کر کے دعا کریں کہ پروردگار ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالی ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو قبول کرے اور پروردگار اس بیماری سے بھی چھٹکارا عطا کر دے۔ رمضان میں افطار کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، سحری کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ دعا کے اندر، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر وقت گزاریں اور گھر سے باہر ہرگز نہ نکلیں۔ امام ہاؤس نیو دہلی سے امام ڈاکٹر عمیر احمد الیاسی اسی سلسلے میں رمضان کی آمد پر اپنا بیان دے رہے ہیں اور تمام لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں، کورونا کرفیو کے چلتے بتا رہے ہیں طریقہ کہ کس طرح سے آپ کو سحری کا خیال کرنا ہے، افطار کا، تراویح کا۔ سنیے ڈاکٹر امام عمیر احمد الیاسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से, अइम्मा मसाजिद से, तमाम मसाजिद के मुतवल्लियों से एक गुजारिश और एक अपील करना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान का मुबारक महीना, चूँकि जैसे कल उम्मीद है कि कल चाँद दिखने का, अगर कल चाँद दिख जाता है तो उसके बाद 25 तारीख को पहला रोज़ा होगा इंशाअल्लाह। कल ख़ास तौर पर नमाज मगरिब के बाद, अज़ान मगरिब और नमाज के बाद चाँद देखने का एहतमाम ज़रूर करें, क्योंकि चाँद का देखना सुन्नत है। मैं इस मौके पे रमज़ान की मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ और साथ में गुजारिश भी करना चाहता हूँ कि जैसा कि आपको मालूम है कि हिंदुस्तान के अंदर लॉकडाउन है और ख़ास तौर पर दफ़ा 144 भी लगी है। उसके मद्देनज़र आप सभी हजरात से मेरा कहना यही है कि रोज़े हम पर फ़र्ज़ हैं, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। हमें सारी इबादत करनी है, लेकिन ये इबादत घर के अंदर करनी है, क्योंकि मस्जिदों के अंदर बिल्कुल पाबंदियां लगी हुई हैं। तमाम मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, सभी जगह पाबंदी लगी हुई है। तो मैं तमाम सबसे गुजारिश करूँगा कि तरावियाँ अपने घर के अंदर पढ़ेंगे। तरावियाँ सुन्नत मुअक्कदा हैं, उनका ज़रूर पढ़ना चाहिए, और लेकिन अपने घर के अंदर पढ़ेंगे, और जिनको छोटी सूरतों के साथ पढ़ेंगे तो इसका एहतमाम ज़रूर करें। और ख़ास तौर पर मैं तमाम उन लोगों से कि रोज़ा घर के अंदर रहेगा, अपने इबादतें करेंगे, अल्लाह से खूब दुआएं करेंगे, लेकिन घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि ये आपको मालूम है कि भारत सरकार की गाइडलाइंस हैं और लॉकडाउन है और दफ़ा 144 लगी हुई है। तो उसके मद्देनज़र बिल्कुल भी कोई हजरात बाहर नहीं जाएगा। इस समय पुलिस का, प्रशासन का पूरा सहयोग हम करेंगे, और हम किसी तरह से कोई ऐसी बदअमनी या कोई ऐसी चीज़ें ना हो कि जिससे कि हमारा रोज़ा भी ख़राब हो और हमारे दूसरों को भी तकलीफ़ पहुँचे। इसका ख़ास ख्याल करेंगे। दूसरी बात यह है कि रमज़ान अल्लाह तबारक व तआला ने ये मुबारक महीना दिया है, हम इसमें खूब इबादत करेंगे, खूब इस्तग़फ़ार करेंगे और अल्लाह ताला से खूब दुआएं करेंगे। ये अल्लाह ने हमको मौका दिया है, खूब दुआएं करेंगे। ये दुआओं का महीना है और इबादत का महीना है। कलाम पाक खूब अपने घर में पढ़ेंगे और उसके साथ उसका तर्जुमा ज़रूर पढ़ेंगे, और मैं समझता हूँ उस पर अमल ज़रूर करेंगे। और ख़ास तौर पर ज़कात के मामले में भी ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अपने सबसे पहले अपने पड़ोसी को, फिर अपने मोहल्ले को, और तमाम जगह जगह अपनी ज़कात जाकर पहुँचाने की कोशिश करना। ये वक्त है, ये बहुत ऐसा वक्त है जो बहुत ही ज़्यादा इस तरह के मुस्तहिक लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो ज़कात जाकर उन लोगों तक पहुँचाना ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। इसलिए हमें इसका पूरा ख्याल करना है। और ख़ास तौर पर अगर हमें तमाम इबादत के साथ साथ नफली इबादत हमें ज़्यादा करनी है, तहज्जुद की नमाज़ें हमें ज़्यादा पढ़नी हैं, और इसके अलावा हम अल्लाह से अपने गुनाहों की भी माफ़ी मांगें, दूसरों की भी लिए भी माफ़ी मांगें, क्योंकि ये पहला अशरा रहमत का, फिर दूसरा मग़फ़िरत का, और तीसरा निजात का अशरा होगा। तो इसका हम पूरा फ़ायदा उठाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमसे ज़रूर राज़ी होगा, क्योंकि अल्लाह से हम खूब तौबा करेंगे, हम खूब तौबाएँ करेंगे। तौबा का अल्लाह ने हमें मौका दिया है, इसलिए सारी नमाज़ें हमारी सही से हो सके इसका हम ख्याल करेंगे, लेकिन घर के अंदर ही रहेंगे, घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे, इसका बिल्कुल ख्याल रखेंगे। मैं तमाम फिर दोबारा से इसकी गुजारिश करता हूँ, और अल्लाह की बारगाह में मैं ख़ुद भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी हमारी इन सब इबादत को, रमज़ान के मुबारक महीने को कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और जाफराबाद में मदरसा बाबुल उलूम के मोहतमिम मौलाना दाऊद अमीनी इसी मामले को लेकर के कोविड-19 कोरोना कर्फ्यू के तहत लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक बार सुनिए मौलाना दाऊद अमीनी, मदरसा बाबुल उलूम जाफराबाद को। और इसके बारे में मुख्तलिफ लोग जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से बातें कर रहे हैं। मेरी तमाम दिल्ली के लोगों से खुसूसन और पूरे हिंदुस्तान के लोगों से अमूमन गुजारिश है कि तमाम हमारे जितने भी बड़े बड़े अकाबिरीन हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, चाहे दारुल उलूम देवबंद हो, चाहे नदवतुल उलमा लखनऊ हो, चाहे मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर हो, मुरादाबाद शाही हो, और दूसरे पूरे हिंदुस्तान के तमाम बड़े इदारे, बड़े अकाबिर, तमाम का मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये ऐलान है कि
चूँकि एक पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में एक महामारी की ये बीमारी जो चल रही है जिसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है, और इसी के चलते हुए जो इसके कुछ इलाज है कि हमारे हिंदुस्तान की हुकूमत ने भी लॉकडाउन किया है। उसमें लोगों को मना किया गया है कि बाहर ज़्यादा ना घूमें, बाहर ना जाएं, अगर कोई जाए तो सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक जाए और गलियों में इकट्ठे ना हो, बल्कि एक जगह एक दूसरे से ज़्यादा ना मिले। इसमें हमारी अपनी सेहत की हिफाजत है। और हदीस पाक के अंदर और कुरान पाक के अंदर है कि अपनी जान को जानबूझ करके हिलाकत में न डालें। जब ये हदीस भी मौजूद है और एक बीमारी उड़कर लगने वाली है, तो इससे जहाँ तक भी हो सके लोग बचें और अपनी खानदान को बचाएं। घर में भी जो रहे तो उससे के बारे में है कि डिस्टेंस बना करके रखें और थोड़े फासले पर रहें। और अब रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर से हर साल की तरह लोग तरावी पढ़ने का इरादा रखते हैं और तरावी पढ़ते भी हैं और पढ़ेंगे, और रमज़ान में रोज़ा भी रखेंगे, सहरी इफ्तार भी करेंगे, अल्लाह से दुआ भी करेंगे। चूँकि जो सबसे पहले तो मेरी अपील ये है, जो ये बीमारी है ये हमारा गुनाहों का नतीजा है। अल्लाह हमसे नाराज़ है, इसीलिए हमारे ऊपर ये आफत और मुसीबतें हैं। हम अल्लाह से दुआ करें, तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, कुरान पाक पढ़ें, तिलावत करें, नवाफिल पढ़ें और रात भर अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह जो हमसे कमी कोताहियाँ हो गई है, भूल हो गई है, या अल्लाह हम गुनाहों में मुलव्विस हो गए हैं और हम रात दिन लगे रहे। अल्लाह के कहर का जो है आया हुआ है, जो अज़ाब इलाही है, ये बीमारी एक बहुत बड़ा अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर अज़ाब है। हम अपने गिरेबान में जाके अपना मुहासबा करें कि जो भी ये बीमारी है कि हमारे गुनाहों का नतीजा है, तो अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करके दुआ करें अपने लिए, मुल्क के लिए और तमाम हिंदुस्तान के रहने वाले वासियों के लिए, चाहे वो बिरादरान वतन हैं या मुसलमान हैं या सिख हैं, ईसाई हैं, हमारे बिरादरान वतन हैं, हर एक के लिए दुआ करें। अल्लाह दुआ कबूल करेगा रमज़ान की बरकत से। रहा मसला तरावी का, रमज़ान में जैसे अब तक हम लोग पढ़ते आए हैं, कोई भी लोग ज़्यादा ये कोशिश ना करें कि हम मस्जिद में जाएं। मस्जिद इसी तरह से लोग रहेंगी, और जो लोग अंदर हैं, इमाम हो, मुअज्जिन हो, सफाई वाला हो, ज़्यादा से ज़्यादा 4 आदमी पीछे हो, एक इमाम हो, और जो पीछे 4 आदमी सब में हो वो भी फासला बनाकर खड़े हों, और बाकी लोग अपने घरों में नमाज पढ़ने की कोशिश करें, घरों में ही रहकर इबादत करें, घरों में नमाज पढ़ें। और घरों में नमाज पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत लंबी चौड़ी जमात करें, बल्कि सिर्फ ये कि जो घर के लोग हैं 3, 4, 5 वो ही अपने उसमें पीछे खड़े हों और फासले से खड़े हों, डिस्टेंस बना के खड़े हों, ताकि जो है हुकूमत का कानून जो है उसका भी पालन हो सके, हमारी हिफाजत भी हो सके। और देखिए कुछ लोग जैसे तरावी रखते हैं कि साहब कौन देख रहा है, क्या है, हम घर में पढ़ लें या छतों पर पढ़ लें। बिल्कुल इकट्ठे ना हो, कानून की खिलाफ वर्जी होगी, और फिर जब डंडा पड़ेगा तो आप हजरात कहेंगे कि साहब जो है सख्त हो रहा है, प्रशासन हमारी सख्ती कर रही है। मेरी बल्कि साहब जो लोग जिम्मेदार हैं उनसे गुजारिश है कि प्रशासन का, पुलिस का और तमाम हुकूमत के डॉक्टर्स का, सफाई कर्मचारियों का, उनका एहतराम भी करें, उनकी दिलजोई भी करें कि वो ऐसी महामारी बीमारी में भी हम लोगों के डॉक्टर जो है, नर्स जो है वो हमारी हिफाजत कर रही है, दवा कर रही है, पुलिस अमला जो है वो हमारी हिफाजत कर रहा है, और सफाई कर्मचारी इस वक्त में भी वो अपनी सफाई में लगे हुए हैं। बल्कि हमें उनका इस्तकबाल करना चाहिए, उनका ताउन करना चाहिए। और मैं तमाम ही हिंदुस्तान के लोगों से उमूमन और दिल्ली के लोगों से खुसूसन गुजारिश करता हूँ कि अपने घरों में रहे, नमाज छतों पर पढ़ने की कोशिश ना करें, और ज़्यादा लोगों को इकट्ठा ना करें कि भाई हमें कौन देख रहा है, यहाँ छतों पे इकट्ठे हो जाओ। अगर अल्लाह ना करे पुलिस अमला नहीं देख रहा, कोई हुकूमत के लोग नहीं देख रहे, तो कम से कम हम जो वादा किए हो हमारी हुकूमत ने उसको कह रखा, अल्लाह तो हमें देख रहा है, हम कानून का उल्लंघन ना करें। और ये बीमारी किसी और के लिए नहीं, बीमारी जो हम में लगेगी वो हम अपने आप को हलाक कर रहे हैं और अपने बच्चों को हिलाक कर रहे हैं। और ये कहीं भी नहीं लिखा कि आप जानबूझ करके अपनी जान को जोखिम में डालें। इस खबर पर आपको साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज
हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू फॉर नाउ। यही दुआ करूँगा जाते जाते कि ये पाक और मुक़द्दस महीना जो अब आने जा रहा है, इसमें आप लोग सुकून के साथ, अमन व अमान के साथ घरों पे रहें, दुआएं करते रहें और इस मोहलिक बीमारी से, किसी तरह इसके ख़ात्मे से दुआ कीजिए बारगाह इलाही में कि अल्लाह जल्द से जल्द इस बीमारी को ख़त्म करे, आपको, आपके अपनों को, सबको महफूज रखे। बहुत बहुत शुक्रिया।